ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ, डॉक्ट्राइन्स के कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग दोज डॉक्ट्राइन्स along with their exceptions with examples in very much detail। ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बता दिया गया था आपको, अल्ट्रा का मतलब था बियॉन्ड एंड वायरस। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। अल्ट्रा, beyond and virus powers. If we combine meaning of both the words, ultra virus means beyond power. As already discussed, that no company can go beyond the powers as specified in their memorandum of association, and it is the duty of a company to follow or to abide that limits or powers as specified in their memorandum. If a company exceeds such powers, that is known as doctrine of ultra virus. The doctrine, the ultra virus acts are prohibited and such acts are void ab initio. No company can make an ultra virus act valid even if every member gives their consent to it. Any act which is ultra virus to the memorandum of company, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, any act which is ultra virus to the memorandum of the company can never be ratified even if 100% of the members. Any act which is ultra virus to the memorandum of company can never be ratified even if such acts are ratified by 100% members of the company. The general rule is that an act which is ultra virus, the company is incapable of being ratified or is incapable of ratification. The rule is meant to protect the shareholders and the creditors of the company. देखोगे स्पेशल नोट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, ओनली द शेयरहोल्डर्स कैन रेटिफाई इट। इफ इट इज अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी रेटिफाई कर सकता है। बट इफ इट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, if it is beyond the power of memorandum, it can never be ratified even if 100% members of the company gives their consent. Even if 100% of the members of company gives their consent for ratification. Effect of ultra virus transaction void ab initio. The ultra virus acts are null and void ab initio, and thus company shall not be held liable. And thus company shall not be held liable for any ultra virus transactions. इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है बच्चों स्टे ऑर्डर। तो अल्ट्रा वायरस एक्ट्स के अगेंस्ट द कोर्ट कैन पास एन इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट द अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। अल्ट्रा वायरस एक्ट्स के अगेंस्ट, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स के अगेंस्ट कोर्ट क्या कर सकता है? इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, या ऐसा भी मान लो कोर्ट कैन पास स्टे ऑर्डर for preventing a company. Court can pass a stay order for preventing a company from entering into any ultra virus transaction. कोर्ट स्टे ऑर्डर पास कर सकता है एक कंपनी को प्रिवेंट करने के लिए from entering into any ultra virus transaction. Personal liability of directors, हमारे एग्जाम्पल में भी अगर तुमको याद हो, the company shall not be held liable for any ultra virus acts, whereas the directors are personally held liable for the ultra virus acts, and also the director shall be personally liable to any third party. समझ रहे हो? अल्ट्रा वायरस एक्ट्स के लिए कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड लाइबल, and in such cases directors in their personal capacity can be held liable. फिर बोला प्रॉपर्टी अक्वायर्ड इन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करके कोई प्रॉपर्टी अक्वायर किया है, ठीक है,
अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है तो प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ेगा। या मान लो कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करके मनी एक्वायर किया है और उस मनी को कंपनी ने यूज किया है फॉर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। फिर से सुनना, कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करके कोई मनी एक्वायर किया है एंड दैट मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट्स, देन इन सच केसेस उस एसेट्स के ऊपर राइट्स किसको मिलेगा? राइट्स मिलेगा वो पर्सन को जिसके साथ, या राइट्स मिलेगा उस आउटसाइडर को जिसके साथ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, जिसके साथ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। देखोगे, वेयर अ कंपनीज मनी हैज बीन यूज्ड अल्ट्रा वायरस टू एक्वायर सम प्रॉपर्टीज, द कंपनी राइट्स इज हेल्ड सिक्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक तुमको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, केस लॉ दिया हुआ है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज द रीचे। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुआ था विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। पहला, टू मेक एंड सेल और लेंड और हायर रेलवे प्लांट्स। दूसरा, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये दो ऑब्जेक्टिव कंपनी का। दे विल मेक, सेल, लेंड और हायर रेलवे प्लांट्स। दे विल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रीचे। रीचे कौन था? एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया किसके साथ? मिस्टर रीचे के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया? दैट दे विल फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड, and after certain period company has repudiated the contract on the ground of its being ultra virus। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस है? तो तुम चेक करोगे कि कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, whether company was authorized to enter into such transaction, whether company was authorized to enter into such transaction। यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंसिंग। ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। क्या कंपनी का काम फाइनेंसिंग का है? क्या कंपनी का काम फाइनेंसिंग का है? आंसर इज नो, कंपनी कैन नॉट फाइनेंस। देखो काम क्या था उनका? टू मेक एंड सेल और लेंड और हायर रेलवे प्लांट्स, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो दोनों बिजनेस है, इट इज नोवेयर रिलेटेड टू द फाइनेंस, बट कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट। क्या कंपनी किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकती है इन द गिवन केस? आंसर इज नो। तो वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायरस, ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस, यस। वेदर कंपनी कैन डिनाई द परफॉर्मेंस, आंसर इज यस, एज इट इज अ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन एंड वॉइड एब इनिशियो। अल्ट्रा वायरस है तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन पीरियड, देखो कंपनी हैज repudiated the contract on the ground of its being ultra virus. Contractor has argued that contract was within the powers of the company because the contract was ratified by the majority of shareholders। हो ही नहीं सकता ना, अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, ऑब्जेक्ट से बाहर है, मेमोरेंडम से बाहर है, तो रेटिफाई भी नहीं हो सकता है। पढ़ा अभी हम लोगों ने जजमेंट, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस the company and therefore it is null and void। Even the shareholders cannot ratify the contract as the contract was ultra virus, the object clause of the company। कंपनी चाह के भी ऐसे ट्रांजैक्शंस को, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस को रेटिफाई नहीं कर सकती है। कौन से अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन? which is ultra virus to the memorandum of company, which is ultra virus to the memorandum of company। Is it clear?
ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, एक चीज ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू डिसाइड, इसको नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन ऑर्डर टू डिसाइड whether a transaction entered into, in order to decide whether a transaction entered into by any company is ultra virus or not, in order to decide whether a transaction entered into by a company is ultra virus or not, आप चेक करोगे whether such transaction is entered for achieving, whether such transaction is entered for achieving main object या main purpose of company, or whether it is in line with the main object of the main object or main purpose of the company, the transaction, or it is incidental to main object, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना एक बार, और whether it is incidental to the main object, मतलब although main object नहीं है बट वो ट्रांजेक्शन में तुम एंटर कर रहे हो फॉर अचीविंग द मेन ऑब्जेक्ट, ऑल्दो मेन ऑब्जेक्ट नहीं है वो ट्रांजेक्शन, ऑल्दो तुम्हारा काम वो नहीं है बट वो तुम्हारे काम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कल को कंपनी बना दिया नॉलेज एकेडमी लिमिटेड, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का टू इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल दी स्ट्रीम्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, मेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, टू इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल दी स्ट्रीम्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, चाहे वो सीए के हों, सीएस के हों, सीएमए के हों, 11th एंड 12th हो, and very soon we are going to start a new segment, we are going to start CFA also, ठीक है, we are into certain transactions and उसके बाद हम लोग CFA भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब मान लो कि मैंने या नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ने एक ट्रांजेक्शन में एंटर किया फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, एक स्टेशनरी सप्लायर के साथ मैंने ट्रांजैक्शन में एंटर किया फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, समझ रहे हो, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ 11th 12th सीए सीएस सीएमए या टू कॉमर्स स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन क्या कर रहा हूं, फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, whether this transaction is ultra virus, whether this transaction is ultra virus, answer is no, क्यों, because stationery is required to carry out, stationery is required to carry out my main object, या stationery is required to carry out main purpose of my business, main purpose of my business, ठीक है, यहां पे अल्ट्रा वायरस नहीं है। लेकिन मान लो कि नॉलेज एकेडमी लिमिटेड ने ट्रांजैक्शन में एंटर किया टू प्रोवाइड फाइनेंस टू सर्टेन बोरोवर्स, कुछ लोगों को हमने प्रॉमिस किया कि तुम्हें फाइनेंस करेंगे,
फॉर एनी स्टार्टअप। मान लो मेरे दो स्टूडेंट आते हैं, वो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपके कंपनी से लोन दिला दो। मैंने ठीक है, कंपनी तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करती है कि तुम्हें स्टार्टअप खोलने के लिए कंपनी लोन देगी। बताओ अभी ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस है? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज नोवेयर रिलेटेड टू imparting of education. It is nowhere related to imparting of education. Clear sir? Is it clear? चलो आगे देखोगे। यही गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए आप ये एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, केसेस को आप पढ़ना, आंसर्स आपको गिवन है, इट विल हेल्प यू टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। चलो आगे आ जाओगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अलॉन्ग विद इट्स एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था। व्हेन द मेमोरेंडम of association and articles of association is registered with the ROC, it becomes a public document and it can be inspected by anyone on the payment of a nominal inspection fees to the ROC. Every person who intends or who proposes to enter into a contract with a company, they have means of ascertaining, उनके पास मैं ऐसे बोल सकता हूँ उनके पास राइट्स हैं, ठीक है, या उनके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी। दे हैव मींस ऑफ असर्टेनिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली इसलिए दे आर प्रिज्यूम्ड टू नो not only the exact powers of the company but also the extent to which these powers have been delegated to the directors and of any limitations placed upon the exercise of these powers, ठीक है। in other words, दूसरे शब्दों में कहें तो every person dealing with the company is deemed to have constructive notice of the content of the memorandum and articles of the company. In fact, ऐसा माना जाता है he is regarded not only as having read those documents but also as having understood them according to their proper meaning. As per this doctrine ऐसा माना जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए जा रहा है, that person has read the memorandum and articles, that person is very much aware about the powers of company as given in their memorandum and articles, as well as उसने पढ़ा भी है और उसको समझ में भी आया, he truly understand the powers given to the company in its memorandum or articles. If a person enters into a contract with a company which is beyond the powers of the company as defined in the MOA or AOA, he cannot acquire any rights under the contract against the company. बस समझ में आया। फिर भी अगर वो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो वो पर्सन कंपनी के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का क्लेम रेज नहीं कर पाएगा, ठीक है सर। ठीक है सर, अब ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया है, पढ़ लेना इसको, मजा आएगा। आ जाओगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो ये भी अपन ने डिस्कस किया था। दिस डॉक्ट्राइन इज अपोजिट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फर्दर दिस डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी if a person deals with a company having satisfied themselves that the proposed transactions are not inconsistent with the memorandum and articles of the company, are not bound to inquire, मतलब outsider need not to inquire the irregularity in any of the internal proceedings of the company. This doctrine is known as doctrine of indoor management. इसका मतलब that whenever an outsider is entering into any kind of transaction with the company, then at the time of entering into the transaction, he need not to inquire
about any kind of irregularity present in the management of company. ये कंपनी का फॉल्ट है. वो ऐसा मान के चलेगा that as far as internal proceedings of the company is concerned, it has been duly carried out by the company in accordance with the requirement of laws, rules and regulations. In accordance with the requirements of laws, rules and regulations, ऐसा वो मान के चलेगा. कौन? आउटसाइडर. ठीक है. तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये प्रोटेक्ट करेगा आउटसाइडर को अगेंस्ट द कंपनी. हाउएवर इट हैज सर्टेन एक्सेप्शन. कुछ एक्सेप्शन जहां पे ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. मान लो आउटसाइडर को पहले से मालूम है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट इरेगुलर तरीके से अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो उन केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल और इट शैल नॉट प्रिवेल. अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर तुमको रेमेडी तभी मिल सकता है व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. अगर तुमने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ही नहीं पढ़ा है, अगर तुमने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ही नहीं पढ़ा है, देन यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट. You cannot protect your interest under doctrine of indoor management. Forgery. In case of forgery also, this doctrine shall not be applicable. The rule of indoor management does not extend to transaction which involves forgery. मतलब तुम समझो, यहाँ बोला कि forged transaction के केस में, forged transactions के केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल. फॉर्ज्ड ट्रांजैक्शन के केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल. इज इट क्लियर? क्लियर है आपको? क्लियर है? चलिए. अच्छा, ये देखना डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो, ये लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था, एक बार मैं बता देता हूँ. डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो stands for an alternate personality. This doctrine is being used by the court in reference to determine the personal liability of the stockholders, या members, officers and directors for their fraudulently and unjustly act. ये doctrine कब applicable होगा? तो भाई ये doctrine applicable होगा when the members or directors या managers, members या directors या managers of company has acted in a malified manner or they have acted in a fraudulent manner. तो उन केसेस में in order to make the members directors, in order to make the members and directors of the company held liable, this doctrine will be applicable. ये डॉक्ट्राइन कब एप्लीकेबल होगा? जब कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स ने कोई फ्रॉडलेंट एक्ट किया है. ठीक है. और एज पर दिस डॉक्ट्राइन जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है या जो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी का, इट विल बी इग्नोर्ड. एंड एज इट इज बीइंग इग्नोर्ड, तो कंपनी ने जो फ्रॉडलेंट एक्ट किया है या कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स ने जो फ्रॉडलेंट एक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, they will be held personally liable. They will be held personally liable for all such acts done by them on behalf of company. देखो क्या लिखा है. In other words, this doctrine used by the court to ignore the corporate status of a group of stakeholders, officers and directors of a corporation in reference to their limited liability so that they may be held personally liable for their action when they have acted in a fraudulent or unjust manner, or when they refuse to do so would deprive an innocent victim of redress for an injury caused by them. मान लो कि in any case किसी कंपनी के मेंबर ने या डायरेक्टर्स ने, मेंबर्स ने या डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉडलेंट एक्ट किया
Though in such cases, doctrine of alter ego shall be applicable, and members as well as directors of company who has acted fraudulently, members and directors of company who has acted fraudulently or who has acted in a malified manner shall be held personally liable. They shall be held personally liable for the acts of the company. ठीक है सर, ये एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ अलॉन्ग विद द कंसेप्ट डिस्कशन क्लास, आप ये भी गो थ्रू करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो डॉक्ट्राइंस में अभी के लिए इतना ही। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।